Good morning friends. In the last class video, we have studied about the topic that is the image formations by the convex lens and the concave lens. And we have also studied in the last class about the types of the lens. It means convex and concave lens. And the second name of the lens was that is the convex lens. Second name is convergent lens, and the concave lens second name is divergent lens. So according to the nature, we have classified the concave and we have called the concave and convex lens with their second name. So convex lens nature is to converging the light rays, and concave lens nature is to diverging the light rays. Now dear students, in today's class we will study the topic that is the sign convention rule. Sign convention rule in the case of lens. Basically sign convention rule is same or similar in both the cases. It means in the case of lens and in the case of mirror, the sign convention rule is approximately same, but as a revision we are going to start or recall the part of sign convention rule but with the case of lens. Dear friends, for the understanding of the sign convention rule, we are using a very simple method, that is the coordinate geometry. By using the concept of the coordinate geometry, we can understand the sign convention rule, and this one sign convention rule we can apply in both the categories of the questions, that is in the case of lens and in the case of mirror. Basically साइन कन्वेंशन रूल जो है ये हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, और न्यूमेरिकल के केसेस में आपने मिरर में देखा होगा कि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द फोकस यानी कि फोकल लेंथ को लेकर के हमें डिसाइड करना होता है कि इनकी ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, फोकस जो है और इमेज जो है, इनकी पोल से डिस्टेंस कहाँ और किस साइड में होती है, और उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करते हैं. सिमिलरली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज को भी हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ उनके नेचर के क्रॉसपॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करते हैं. तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल मेथड यूज करना चाहते हैं, और जो सिंपल मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड. By using the concept of coordinate geometry, we can understand the sign convention rule very easily. So now look at the board. Dear friends, for the study of the sign convention rule, we are using a coordinate geometry concept. For this one, we are drawing the horizontal line, which will be considered as a y-axis. Horizontal line in the coordinate geometry will be considered as a y-axis, and the vertical line will be considered as a y-axis, and the horizontal line will be considered as a x-axis. So dear friends, we know very well according to our knowledge of the previous classes and the current class that the intersecting point of the horizontal and vertical line, it means the x-axis and y-axis intersecting point will be considered as a origin. So this is called the origins. We can consider it as like as O. Dear friends, this one line part of the line segment will be considered as a positive x-axis. It will be considered as a negative x-axis. This one part will be considered as a positive y-axis, and it will be considered as a negative y-axis. And this is the origin, it is midpoint. Now we are going to study the coordinate geometry concept, but with the lens. It means in the case of sign convention rule. यहाँ पर हम इसको साइन कन्वेंशन रूल में यूज करने वाले हैं. तो साइन कन्वेंशन रूल में अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये है कि अगर हम इस ओरिजिन पे एक लेंस अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें, यानी कि इसमें सेंट्रल पोजीशन पे अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करें, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक तरह से किसका रोल प्ले करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अब अगर हम इसकी लैबलिंग कर लें, हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन रूल को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक बार इसकी लैबलिंग करके देखते हैं. तो लैबलिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1, एंड ऑन द राइट साइड दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2. Dear friends, for understanding the concept of sign convention rule, we are using the one conditions of the image formations. जो इमेज फॉर्मेशंस की जो हमने कंडीशंस को जो स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में, उसमें से किसी एक कंडीशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं
ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सी कंडीशन यूज कर रहे हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस के साथ में है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम 2f1 पे कंसीडर कर रहे हैं. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1. So in that case we know very well that by using the rule of image formations, यानी कि इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बात पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे अगर कंसीडर करते हैं इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन दैट केस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ 2f2 in inverted condition with the same size. So this is it will be the position of the image, right? यानी कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को 2f1 कंसीडर करते हैं तो इमेज हमें कहाँ पे मिलती है? हमेशा 2f2 पर मिलती है, जो कि हमने इमेज फॉर्मेशन के केस में इस बात को स्टडी कर रखा है. अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है. साइन कन्वेंशन रूल को अप्लाई करना इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल है. देखो कैसे. साइन कन्वेंशन रूल के अंदर जब हम लेंस में इसको स्टडी करते हैं तो लेंस में जो सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी कि जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं, ये यहाँ पर एक तरह से ओरिजिन का ही रोल प्ले करता है. ठीक है, ओरिजिन का रोल प्ले करता है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर. और अगर हम यहाँ पे लेंस को हटा दें, लेंस की जगह अगर हम मिरर को यूज करना शुरू करें, मिरर को, तो मिरर में जो पोल होगा वो पोल यहाँ पर एज अ ओरिजिन रोल प्ले करेगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं. तो देखो u, v और f, ये तीन वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं. u, v एंड f. u, v एंड f, ये थ्री वैल्यूज का हम यूज करते हैं. वी आर यूजिंग these three values in the case of mirror and in the case of lens. Dear friends, one more point we are going to study. We are going to study that u, v and f. u means position of the object, it means distance of the object from the optical center. v means position of the image or distance of the image from the optical center. f means focal length of the lens. तो कब किस सिचुएशन के अंदर u, v एंड f की वैल्यू प्लस में यानी कि पॉजिटिव होगी और कब किस सिचुएशन के अंदर नेगेटिव होगी, इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. और साथ में हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज के बारे में भी स्टडी करेंगे कि कब इसको पॉजिटिव और कब इसको नेगेटिव कंसीडर करना है. ये सारा कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इसको हम एज इट इज मिरर में भी यूज कर सकते हैं. अगर आपका मिरर के केस में साइन कन्वेंशन रूल वाला जो पार्ट है, अगर वो आपका अगर वीक है या आपको अगर किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस टॉपिक के थ्रू उसको भी क्लियर कर सकते हो. तो देखो, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विल बी कंसीडर्ड एज अ u. अब देखो ध्यान से देखना है, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, यानी कि u की जो पोजीशन है, इसको आपने कैलकुलेट करने के लिए कौन सी एक्सिस का यूज किया है? नेगेटिव एक्सिस. क्यों? क्योंकि आप कहां गए हो? ओरिजिन से इधर लेफ्ट वाली डायरेक्शन में गए हैं. तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन किसको इंडिकेट कर रही है? नेगेटिव एक्सिस को. तो इसलिए यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी. इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करके स्टडी कर रहे हैं. फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो रूल कुछ और ही होता है. फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि अगर कोई भी लाइट रे जिस डायरेक्शंस के अंदर अगर मूव करती है, तो उसकी अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर होगी. लेकिन हम इसको सिंपल वे में समझने के लिए ट्रिकी मेथड यूज कर रहे हैं. और ट्रिकी मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो u यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगी वो किस में होगी? माइनस में. और ये किसकी पोजीशन है? दिस इज द पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ इमेज. तो इमेज की डिस्टेंस जब हम ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके थ्रू डिनोट होती है? v के थ्रू डिनोट होती है. लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है. कौन सी डायरेक्शन है ये? पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन. तो इसलिए v की वैल्यू किस में कंसीडर होगी? प्लस में. और u की वैल्यू माइनस में कंसीडर होगी. तो v की वैल्यू को तो हम प्लस में यूज करेंगे और u की वैल्यू को माइनस में यूज करेंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है, चाहे मिरर हो या लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही कंसीडर होगी. और अगर इमेज की पोजीशन राइट साइड पर है, चाहे लेंस हो या मिरर, अगर राइट साइड पर है तो फिर वहां पर इमेज की जो डिस्टेंस है यानी कि v, वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होगी. तो ये हमारे लिए u और v के लिए क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ यानी कि f की. तो फोकल लेंथ के केस में क्या होगा कि अगर हम लेंस यूज कर रहे हैं तो लेंस के डबल फोकस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मिरर के अंदर जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं, मिरर के अंदर हमने क्या कंसेप्ट यूज किया था कि मिरर के अंदर अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर के अंदर फोकस कहाँ होता है? लेफ्ट साइड पे होता है. कॉन्केव मिरर जो था उसके अंदर फोकस कहाँ पे था? लेफ्ट साइड पर, इधर लेफ्ट साइड पर. तो इसलिए इसको क्या कंसीडर किया जाएगा?
नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस था वो कहां पे था, राइट साइड पर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस राइट साइड पे, और कॉन्केव मिरर के केस में फोकस कहां पे था, लेफ्ट साइड पर। तो इसीलिए हमने क्लियर कर दिया था कि अगर कॉन्केव मिरर या कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव मिरर या कॉन्केव लेंस है, तो वहां पे फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। If the lens is concave and the mirror is concave, in both the cases focal length will be negative. And if the lens is convex and mirror is also convex, in that case focal length will be always पॉजिटिव। ये हमें लर्न करके रखना है। न्यूमेरिकल के केस में हम जब लेंस वाला पार्ट यूज करेंगे तो वहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस दोनों साइड होता है। तो हमें मिरर वाले से रिलेट करते हुए, यानी कि मिरर के कंसेप्ट का यूज करते हुए हमें फोकस की वैल्यू को प्लस और माइनस कंसिडर करना है। तो कॉन्केव में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। राइट? ओके, नाउ we are going to discuss the point that is the height of the object and height of the image. ऑब्जेक्ट की हाइट, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये कौन सी एक्सिस के थ्रू कंपेयर हो रही है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के थ्रू कंपेयर हो रही है। किसके थ्रू? क्योंकि वर्टिकल हाइट का केस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की कंपैरिजन के अंदर, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग इसकी हाइट को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और हाइट ऑफ द इमेज की अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि यहाँ पर इस वाली सिचुएशन के अंदर हाइट ऑफ द इमेज क्या है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ होने का मतलब ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग कंपेयर हो रही है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग अगर इसकी पोजीशन है तो इसलिए यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइन के थ्रू कंसीडर होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो या हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो या हाइट ऑफ द इमेज, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गया कि वो रेक्ट कंडीशन में सीधी है, चाहे इमेज हो या ऑब्जेक्ट, इमेज हो या ऑब्जेक्ट, अगर वो सीधा है यानी कि रेक्ट कंडीशन में है, in that case it will be always positive. But if the height of the object and height of the image is in inverted conditions, inverted conditions means downward direction, यानी कि उल्टा है, in that case it will be considered, it means in that case height of the image or height of the object will be considered negative. But dear students, we know we always set the object in rect condition. हम ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखते हैं, तो इसलिए हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू को तो हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज की जो वैल्यू है, यानी इसकी जो पोजीशन है, ये डिपेंड करती है कैटेगरी ऑफ द लेंस, कैटेगरी ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। यानी कि इसके अंदर वेरिएशन होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो, आप उसकी डिस्टेंस यानी उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पे रख रहे हो, तो उसके केस में इमेज की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो उसकी वजह से इमेज का नेचर चेंज होता रहता है। इमेज में भी इरेक्ट और इमेज में भी इन्वर्टेड। सो इन दैट केस we can clear, in that case we will decide that the value will be positive or negative. तो अगर inverted image है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव कंसीडर होगी, और अगर रेक्ट कंडीशन में है तो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होगी। So dear students, it was the concept of the sign convention rule in the case of lens, but you can use it in the case of mirror also. By using this one concept, we will solve the numerical. So in the next video, we will study some numericals. We will solve some numerical from our NCERT book, right? But before it, we are going to recall two more smaller topic for the numerical purpose and for the theoretical concept also. दो टॉपिक्स हमारे NCERT बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे इस चैप्टर में है उसको हम पहले स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले। तो वो है, तो दैट इज द दीज टू टॉपिक्स आर, फर्स्ट इज द lens formula and the other is linear magnifications. So
Dear students, lens formula and linear magnifications are as similar which we have studied in the case of mirror, but there are some difference. हमने इससे पहले मिरर के केस में भी मिरर फॉर्मूले को स्टडी किया था और उसके साथ साथ हमने वहां पे मैग्निफिकेशन का पार्ट भी स्टडी किया था. बट इन द केस ऑफ लेंस देयर आर सम डिफरेंस इन द फॉर्मूला ऑफ लेंस, इन द फॉर्मूला ऑफ लेंस एंड इन द केस ऑफ linear magnification. So first of all, we are going to discuss on the topic that is lens formula. Lens formula. Dear students, what is the lens formula? So it will be same as lens formula means a relationships between the u, v and f. In the case of lens is called lens formula. That is called the lens formula. u, v, f में जो relation होता है लेंस के केस में that is called the lens formula, and lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. This is called the lens formula. लेंस फॉर्मूले के केस में यहाँ पर u और v जो कि रेसिप्रोकल फॉर्म में है, इनके बिटवीन नेगेटिव साइन कंसीडर होता है. मोस्टली हम यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं. We can learn the formula but we can put the mistake, we can do the mistake in the position that we can write down it as 1 upon u minus 1 upon u by the misunderstanding. हम यहाँ पे गलती से क्या लिख सकते हैं 1 upon u minus 1 upon v. हमें हो सकता है कि बात याद रहे कि लेंस फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन आता है, लेकिन हम इस बात को वहाँ पे भूल जाए कि 1 upon u minus 1 upon v था या 1 upon v minus 1 upon u था. तो हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला जो होता है इसको भी एक ट्रिकी मेथड से लर्न कर सकते हैं. वो ट्रिकी मेथड क्या है? 1 upon f, लेफ्ट साइड पे जो रिलेशन यानी जो वैल्यू है वो तो फिक्स है 1 upon f. मिरर में भी यही था और लेंस में भी यही है. मिरर के केस में राइट साइड पे जो रिलेशन था वहां पे दोनों के बिटवीन जो साइन था वो क्या था? पॉजिटिव था. मिरर के केस में जो फॉर्मूला था वो था 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. बट लेंस के केस में इन द केस ऑफ लेंस फॉर्मूला इज 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon v minus 1 upon u. So that's why we can learn it as by the trick that is second minus first. Second minus first. और ये indirectly हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि both are in the reciprocal form. Second minus first कैसे? अगर हम अल्फाबेटिकल लेटर के अकॉर्डिंग अगर इनकी रैंक को देखें तो पहले u आता है, बाद में v आता है. तो u फर्स्ट हो गया और v सेकंड हो गया. So we can learn that second minus first. So by using this one concept or trick we cannot do any mistake in writing the formula. So the mirror lens formula will be 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, and we know that u, v and f meaning u means distance of object from the optical center, v means distance of the image from the optical center, and f means focal length of the lens. Clear? Next one topic is that is linear magnification. Linear magnification. Dear students, theoretical concept is same as we have studied in the case of mirror. जो इसका theoretical concept है वो जो हमने mirror में study किया था वही है, but यहाँ पे we will see a change that is in the form of formula. यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है और वो चेंज जो है वो किसमें है? सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म में. इसमें यहाँ पे डेरिवेशन इन्वॉल्व है. डेरिवेशन जो है लेंस के फॉर्मूले का भी है और लीनियर मैग्निफिकेशन का भी है. बट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ 10th क्लास और फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक देयर इज नो पार्ट इंक्लूडिंग इन आवर सिलेबस ऑफ डेरिवेशंस. यानी कि लेंस और लीनियर मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हमने मिरर में स्टडी किए थे और जो लेंस में स्टडी कर रहे हैं इनका ड्राइव करने वाला जो पार्ट यानी कि फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो हमारे 10th स्टैंडर्ड पे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है. सो वी विल नॉट ड्राइव द डेरिवेशंस, वी विल नॉट solve the derivations of the formulas, we will not write the formulas, we will directly learn the formulas and then we will solve the numericals. So what is the linear magnifications? Linear magnifications means it is the ratio of height of the image with respect to the height of the objects, right? And it is represented by small m. हमने इसको मिरर में भी स्टडी किया था. Linear magnification is denoted by small m and it is height of the image upon height of the objects. In the form of height it is same. अगर हम height की फॉर्म में बात करें तो ये मिरर में भी वही था और लेंस में भी वही है. hi means height of the image, ho means height of the object and m means linear magnifications. Clear students?
हमने इसको बहुत पहले क्लास में ये भी स्टडी किया था, m will be positive when, जब the nature of the image will be virtual and erect, and m will be negative when the nature of the image will be, if the nature of the image will be real and inverted. For the numerical cases we will learn it, हमें इसको याद रखना है, हम इसको याद रखेंगे in the cases of numerical. This is the first form of linear magnification formula. M is equal to hi upon ho, height of the image upon height of the object. And another one form of the linear magnification is that M is equal to v upon u. So this is the formula of in the form of position or distance, where v means position or distance of image and u means position or distance of objects. Dear students, you can see that negative sign will not be considered in this formula. लीनियर मैग्निफिकेशन का जो ये फॉर्मूला लेंस के केस में हम जो यूज कर रहे हैं, इन द केस ऑफ लेंस, दिस इज इन द केस ऑफ लेंस, ये लेंस के केस में, तो लेंस के केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v अपॉन u जो है, इसमें नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं होता है, हमें इसका ध्यान रखना है, वरना हम हमेशा न्यूमेरिकल के केस में मिसअंडरस्टैंडिंग में या कंफ्यूजन के केस में नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं और हमारी पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। माइनस वाला साइन मिरर के केस में यूज होगा और प्लस वाला साइन लेंस के केस में यूज होगा, right? So we can write down the combined formula, m is equal to height of the image upon height of the object is equal to v upon u. So dear friends, this is the formula of linear magnifications. Now in the next video we will solve some numerical based on the topic of lens from our NCERT book.